السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ یقیناً جس طرح سے میں شروع سے کہتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، وبا سے، بلا سے، آفت سے، تمام چیزوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ دعا کے ساتھ سٹارٹ کرتی ہوں حدیث کا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حدیث ہے سابقہ کتب پر قرآن مجید کی فضیلت۔ تو اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تورات کی جگہ 7 صورتیں دی گئیں، یعنی ابتدائی طویل صورتیں، اور زبور کی بجائے 100 آیات والی صورتیں دی گئیں، اور انجیل کے بدلے مثانی یعنی وہ صورتیں جن میں بعض آیات بار بار آتی ہیں دی گئیں، اور مجھے مفصل صورتیں یعنی سورہ محمد سے آخر تک کے ساتھ فضیلت دی گئی۔ مسند احمد کی روایت ہے 16982۔ چلتے ہیں اپنے کورس کی جانب، آسان تجوید کورس تطبیق کے ساتھ۔ تو آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 60 سے سٹارٹ کریں گے، اور 61 کی جو آیت ہوگی وہ ہم ہاف ہی پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لمبی آیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اس کو ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں، کوئی بھی مشکل نہ ہو انشاءاللہ تعالی۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ جی یہاں تک ہی ہم لوگ آج کا لیسن رکھتے ہیں تاکہ آسانی سے آپ کو سمجھ آ سکے، ٹھیک ہے؟ پریشان نہیں ہونا کہ کہیں پہ ہاف آیت تو رہ گئی ہے تو پڑھی نہیں گئی، نہیں، میں نے خود ہی نہیں پڑھی۔ چلے تطبیق کے ساتھ چلتے ہیں آگے پڑھنے کے لیے۔ تو آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے، جو میں سمجھاتی جاؤں اس کو ساتھ ساتھ فالو کریں گے، انشاءاللہ تعالی چند پاروں کے اندر ہی آپ ایکسپرٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تجوید کے تمام قواعد کے۔ ابھی میں یہ صرف آسان اس کا جو سلیبس ہے تطبیق کا میں وہی کروا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تاکہ ہر ایک لیول کا انسان اس کو سیکھ سکے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، ٹھیک ہے؟ یہ حمزہ کی زیر بھی باریک اور ذال کی زیر کو سین کے ساتھ ملانا ہے۔ پھر ہے تس، اسی طرح تا کی زبر کو سین کے ساتھ، قا مد اصلی بالالف کا قائم مقام ہے، یعنی حروف مدہ میں سے ہوا، تو اس پہ ہم کریں گے ایک الف یا 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ اسی طرح منہ پہ مد اصلی بالواو، سا پہ وہی رول ہے جو یہاں پہ میں نے قا کا بتایا ہے، مد اصلی بالالف کا قائم مقام۔ لِقَوْمِهِ، قاؤ پہ جون سا ہے واو لین کا قاعدہ ہو رہا ہے، کیوں؟ واو ساکن سے پہلے دیکھیں یہ قاف پہ زبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو واو لین کہتے ہیں۔
जबकि ये वाव मद्दा का कायदा होगा। वाव साकिन से पहले पेश होगी तो ये वाव मद्दा, और वाव साकिन से पहले अगर ज़बर होगी तो वाव लीन का कायदा कहलाता है। इसको नरमी से पढ़ते हैं। लिक़ौमी ही पे या मद्दा, ठीक है, उसका कायम मुकाम है। इसको भी एक अलिफ या दो हरकत के बराबर खींचेंगे। फ़कुल नद्रिब बिअसाकल हजर। अब रिब यहाँ पे रा बारीक हो जाएगी, क्यों? इसलिए कि इसके नीचे ज़ेर है, ठीक है। फ़कुल नद, नून की ज़बर को दौद, लेकिन इसको दाल नहीं बनाना आपने, नद नहीं कहना, ठीक है, माना चेंज हो जाएगा। फ़कुल नद्रिब, ठीक है, नद्रिब। अब यहाँ पे अगर तो मैंने सेपरेट पढ़ा तो कलकला कर दिया, अदरवाइज़ आपने क्या करना है, फ़कुल नद्रिब बिअसाकल हजर, ठीक है। यहाँ पे रा इसलिए पुर पढ़ा जाएगा क्योंकि साकिन किया हमने, ठीक है। और राज जब साकिन और माँ कबल क्या हो जाता है, ज़बर आ जाए तो ये पुर पढ़ा जाता है, और वैसे भी रा के ऊपर ज़बर हो तो तब भी पुर ही पढ़ा जाता है। फ़ा यहाँ पे नून पे इख्फा करेंगे। फजरत, रा की ज़बर को ता के साथ हम्स करते हुए, मिन नून को ज़ाहिर करते हुए आवाज़ को, हा की पेश को सा के साथ सा नरमी से, इसको सा नहीं कहना, ठीक है, इसको ज़ा नहीं कहना, ठीक है, यह सा नरमी से। मिन हुस्नता, ता मद असली बिल अलिफ, आशरता, रा को पुर, ता की ज़बर को लंबा नहीं करना। आईना या लीन का कायदा जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि वाओ साकिन के आगे अगर पहले हो ये ज़बर, तो इसी तरह या साकिन से पहले भी ज़बर हो। ये सिर्फ दो हरूफ को आपने ज़हन में, वाओ साकिन और या साकिन। हरूफ मद्दा में 3 हरूफ हैं, अलिफ वाव और या, लेकिन हरूफ लीन में सिर्फ 2 हरूफ हैं, या और वाव। लेकिन उसकी शर्त कौन सी है कि उससे पहले वाले हर्फ पर ज़बर आए ना। यहाँ पे अगर हम एक अलिफ के बराबर खेलते हैं और इसकी एक हरकत को पढ़ते हैं तो यहाँ पे वक्फ बिल इबदाल का कायदा, यानी तनवीन को हमने एक ज़बर में बदल दिया अलिफ मद्दा में, तो वक्फ बिल इबदाल। क़द, यहाँ पे कौफ को पुर्त करते हुए दाल पर कलकला। आलिमा, आइन को महरज से वाज़े करते हुए और इन हरकत को लंबा नहीं करेंगे। इसी तरह कुल्लु उनासिम, यहाँ पे इदगाम माल गुन्ना का कायदा। मशरबहुम, ये शजरिया लेटर है, शीन, ठीक है, रॉ को पुर पढ़ेंगे, मीम पे इजहार शफवी। कुलू, यहाँ पे वाव मद्दा। वशरबू, वाव मद्दा। मिर रिज़्क़िल्लाहि, यहाँ पे रॉ बारीक पढ़ी जाएगी। मिर रिज़्क़िल्लाहि, यहाँ पे अल्लाह इसमें जलाला बारीक, क्यों? क्योंकि कौफ के नीचे ज़ेर है इसलिए बारीक पढ़ा जाएगा। वाला अलिफ मद्दा। तअसौ, यहाँ पे फिर वही कायदा है वाव लीन का, वाव साकिन से पहले। आज हम इसके दौरान क्या जितना ज़्यादा आ रहा है, कौन सा आ रहा है, हरूफ लीन का कायदा, ठीक है। तो ये अब आपने उधर जाके तजवीद शॉर्ट कोर्स निकालेंगे तो वहाँ पे आपको ये हरूफ लीन का बयान मिल जाएगा, तो आपको ये सारा यहाँ पे कायदा कुलिया सब पता चल जाएगा वहाँ पे। वाओ साकिन से पहले ज़बर, तअसौ फिल अर्दी, रा को पुर पढ़ेंगे, दौद को भी पुर पढ़ेंगे लेकिन ज़ेर के साथ, बढ़ाना नहीं है। मुफसिदीन, दाल और ज़ेर या क्या होता है दीन, अब दिन नहीं कह देना, ठीक है, या मद्दा हो रही है। आखिर में अगर हम खुद इसको वक्फ यानी करते हैं तो मद्दे आरिज वक्फी भी कहलाएगा। और दूसरे नंबर पे क्या इसका रूल का होगा कि वक्फ बिल इस्कान। व इज़ कुल, तुम दाल नरमी से, मीम पे इजहार शफवी, या पे अलिफ मद्दा का कायम मुकाम, मुँह पे वाव क्या है, वाव मद्दा का, वाव मद्दा हो रही है, सीन खड़ी ज़बर सा, इस पे अलिफ मद्दा का कायम मुकाम। अब लन नस्बिरा, अब यहाँ पे इदगाम माल गुन्ना का कायदा हो रहा है। आज हमने हरूफ लीन को देखना है, बस जहन में रखना है, ठीक है। लन नस्बिरा, ठीक है, इदगाम ज़रूर करना है। बेरा, इदगाम का क्या मतलब है, एक हर्फ का दूसरे हर्फ में दाखिल होना, यानी फिर दोनों को एक साथ मुशद्दद अदा करना, ठीक है। बेरा, रा को पुर पढ़ेंगे। आला, खड़ा ज़बर। तआमिम, यहाँ पे फिर इदगाम माल गुन्ना, तो को पुर, आइन को महरज को, तो आ, ठीक है, आइन कहना, आ नहीं कहना। वाहिद, इफ़ा का कायदा। फदउ लना, दाल कलकला, आइन की पेश को लंबा नहीं करेंगे। अलिफ मद्दा। रब्बा का युखरिज,
यहाँ पे क्या करना है, जीम पे कलकला हिलाना है, जुम्बिश देना है। लना अलिफ मद्दा, गुन्ना मीम मुन्ना 2 हरूफ पे किया जाता है, मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद। तुम बीतू, यहाँ पे इकलाब, ये मैंने आपको बताया छोटा सा एक मीम हो, बस अपनी पहचान के लिए होता है कि मीम छोटा सा आ जाए तो ये मीम क्या है, इदगाम करते हुए यहाँ पे बाप के बा अगर आगे आ जाए तो क्या होता है, तुम बीतुल और दू, ठीक है। यहाँ पे भी इदगाम करना है लेकिन इकलाब के साथ, ता की पेश को लाम के साथ, और दू दौत की पेश को लंबा नहीं करना। मिम बकलिहा, फिर यहाँ पे इकलाब का कायदा, कौफ पे कलकला, हा पे अलिफ मद्दा, व किस्साइहा, यहाँ पे क्या इसको 4 हरकत के बराबर खींचेंगे। हा पे अलिफ मद्दा, वफू पे वाओ मद्दा, हा पे अलिफ मद्दा, वादासीहा अलिफ मद्दा, वबसलिहा सौदपुर लाम की बारीक लेकिन लंबा नहीं करना, और हा पे अलिफ मद्दा। ठीक है, समझ आ गई? नहीं आई तो दोबारा सुन लें, फिर क्या हुआ, रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद है ना। चलें देखें, पढ़ना है, याद करना है, इसको समझना है। याद क्या, इसको समझेंगे ना जब तो सारा कुछ आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला, बहुत सारी दुआओं के साथ, और शेयर करते रहा करें। बस ये चीज़ भी याद रखना है, ठीक है। कंजूसी नहीं करनी, और अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें, ठीक है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।